हे गाइस स्वैप हियर और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स जो है सेबुलिंगम बुक में। यू कैन आइदर रीड फ्रॉम द ए.के. जैन और दिस बुक, बट आई प्रेफर टू रीड यू फ्रॉम दिस बुक। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेड ब्लड सेल्स। इसका द अपकमिंग chapters will become in my series of next video. So let's get started. So basically ये एक summary टाइप का वीडियो है. By this you can cover your syllabus in a very short amount of time. This will be very beneficial for you. So basically अगर हम बात करें definition के RBCs के, so RBC or we can say the erythrocytes, they are the formed elements just like the WBCs and the platelets in the present in the blood. तो उनका red color होता है due to the presence of the hemoglobin. Now the normal count of RBC is 4 and 4.5 million in male, and this is slightly less in female because of the menstrual cycle and because of estrogen. And next thing, if we talk about the morphology of RBCs, तो RBCs डिस्क शेप होती हैं एंड बाइकॉनकेव, और उनका सेंट्रल पोजीशन जो है वो थिकन होता है, एंड जो पेरिफेरी है वो यू कैन सी दैट इज थिक शेप. और बाइकॉनकेव शेप का बेसिकली एडवांटेज ये है कि बाइकॉनकेव शेप जो है वो इक्वल और रैपिड डिफ्यूजन कराती है ऑक्सीजन का एंड अदर सब्सटेंसेज इन द एक्टीरियर ऑफ सेल. और इसके बेसिकली क्यों, क्योंकि ई न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, तो इस वजह से इसका सरफेस एरिया लार्ज हो गया, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज के लिए अच्छा खासा एरिया प्रोवाइड कर देता है. मिनिमल टेंशन ऑफर्ड करता है मेम्ब्रेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सेल अल्टर्स. और बाइकॉनकेव शेप की वजह से जब वो आरबीसीज जो है कैपिलरीज, बिकॉज कैपिलरीज आर थिन, तो आरबीसीज जब पास होंगे कैपिलरी से तो इजीली पास हो जाएंगे बिना किसी डैमेज के. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द बाइकॉनकेव, देन इट्स द पॉइंट इज कवर. द नॉर्मल साइज ऑफ द आरबीसीज, द डायमीटर ऑफ द आरबीसी is 7.2 micrometer, and the other thickness you can see the surface area and the volume. But the most important things which is usually asked in the exams is diameter. Don't forget this diameter of the RBC is 7.2 micrometer. Now we can see, we have seen the normal structure of RBCs. A question is can also form that nucleus, the mitochondria, Golgi body and the other things are absent in nucleus, that's absent in the RBC. So how RBCs produce the energy? So the answer of this question is this: mitochondria are absent, the energy is produced from glycolytic process. So when one can ask how energy is produced, you have to answer like mitochondria are absent, so the energy is produced from the glycolytic process. Now when we talk about the properties of RBCs, then first point is the Rolex formation. तो Rolex formation क्या है? बेसिकली जब ब्लड वेसल से अगर हम ब्लड निकाल लिया जाए तो उस कंडीशन में जो RBCs हैं वो पाइल अप कर जाएंगे एक दूसरे पर लाइक अ कॉइन्स, स्टैक ऑफ कॉइन्स. वी हैव सीन इन द माइटोक्लोरोप्लास्ट जस्ट लाइक स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर. द सेम इज हियर, that type of figure. You can see this like stack of coins. This is the Rolex formation, and one can ask the question like this Rolex formation is accelerated by what? So it is accelerated by plasma protein, namely globulin and fibrinogen. Remember, albumin doesn't come here. The plasma protein, globulin and fibrinogen plays an important. So now when we talk about the specific gravity of the RBC, so specific gravity of the RBC is 1.09 to 1.1.101, and another property of RBC, that is packed cell volume, which is you can see the packed cell volume or the hematocrit volume. तो blood of total all the तो 50 blood का जो है 45% of the blood और 55% जो है वो plasma. Hematocrit volume, you can hematocrit volume is 45% of the blood and plasma volume is 55%. Now the next property is suspension stability. So सस्पेंशन स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो सर्कुलेशन के टाइम पे आरबीसी या तो सस्पेंडेड रह सकती हैं या फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली इन द ब्लड. दिस प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी जो है उसको सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 days. आफ्टर उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इन द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज द स्प्लीन. वन कैन आस्क द क्वेश्चन विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. उसी के अंदर एक सिस्टम होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो एक मैक्रोफेजिक सिस्टम होता है. तो इसके बाद बेसिकली जो ऐसे आरबीसी जो है वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो गए, उसके बाद वो फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, और फ्रेगमेंट होने के बाद उसमें से हीमोग्लोबिन पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है फ्रेगमेंटेड पार्ट से.
तो अगर हम फेट ऑफ हीमोग्लोबिन का बात करें कि जो हीमोग्लोबिन निकल गया फ्रेगमेंटेड पार्ट से, तो उसका क्या होना है, वो 3 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा बेसिकली, द आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन. आयरन मिलेगा एपोफेरिन के साथ और फेरिटिन, एंड देन इट विल स्टोर्ड एंड रीयूज्ड. ग्लोबुलिन विल go into the protein pool and is also stored and reused, and porphyrin ring is go on bilirubin that is in the liver, and it is excreted by the liver. You can see bilirubin is a waste product, useless product, so it will be released. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी क्या करता है बेसिकली, जो ऑक्सीजन है लंग्स से, जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक लेके जाता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, एंड द हीमोग्लोबिन व्हेन कंबाइंस विद CO2 देन इट फॉर्म्स द कार्ब हीमोग्लोबिन. और टिश्यूज जैसे कि जब यूज़ हो जाता है, टिश्यूज़ के बाद जो यूज़ हो जाता है वो ब्लड जो है वो लेके जाता है लंग्स तक वापस प्योरीफिकेशन के लिए. इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स फॉर दिस प्योरीफिकेशन. एंड नेक्स्ट एक्शन इज बफरिंग एक्शन इन ब्लड. हीमोग्लोबिन जो है वो गुड बफर की तरह एक्ट करता है, वो एक pH मेंटेन करता है, एसिड बैलेंस मेंटेन करता है. इन आयरन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन आरबीसी, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट आरबीसी इज कैरी एंटीजन A, B, that is according to that there is blood group A, B, AB, O. So this helps in the blood group determination. So now we come to our next topic which is variation in number of RBC. तो RBC के नंबर में वेरिएशन आ सकता है, दैट इज RBC जो है वो बेसिकली ज़्यादा भी हो सकती है या फिर यू कैन से दैट कम भी हो सकती है. और इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं बेसिकली, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा हो सकती है या फिर पैथोलॉजिकल के अकॉर्डिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्टली द फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में अगर RBC इंक्रीज हो रही है दैट वी कैन से द पॉलीसाइथीमिया, तो उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं लाइक, तो जैसे रीज़न हो सकता है एज, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली इन्फेंट्स में आरबीसीज का काउंट ज़्यादा होता है एंड बाद में ये काउंट कम हो जाता है. बेसिकली इन्फेंट्स में आरबीसीज का काउंट ज़्यादा होता है. इसका रीज़न ये है बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड से, क्योंकि स्टार्टिंग में अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ जो मैटरनल ब्लड है वो फीटल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है. इस वजह से आरबीसी का काउंट इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी कम इन योर एग्जाम्स. एंड नेक्स्ट फीचर the next reason for this is maybe the sex, that before puberty and the RBC's count is generally less in females, but it is normal or we can say equal to males at the time of puberty and after the menopause, because at the time the blood, there is no chance of the blood loss is removed, or we can say that doesn't exist. Therefore, so now we come to the next, that is high altitude is another reason for it. सो इसका रीज़न बेसिकली ये है, जो पीपल जो है हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, दैट इज़ लो ऑक्सीजन. सो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया जो है वो किडनी को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट अ हार्मोन दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेट्स किडनी टू फॉर सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन फर्दर स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज. इसको आप फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल में भी ऐड कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट. एंड अनदर रीज़न इज़ फॉर दिस मस्कुलर एक्सरसाइज, बिकॉज व्हेन वी डू मस्कुलर एक्सरसाइज देन वो अगेन लाइक सेम हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट करता है, और अभी जिसकी वजह से सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, और उसकी फ्रॉम और वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला फिर फर्दर सीक्रेट करेगा एड्रीनलिन. एड्रीनलिन की वजह से स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो आरबीसीज ब्लड में रिलीज हो जाएंगे आरबीसीज. दैट्स हाइपोक्सिया की बेसिकली जस्ट लाइक एरिथ्रोपोइटिन रीजन है, एंड द सेम रीजन इज दैट वाइब्रेशन ऑफ द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी. Another physiological reason is emotional condition. You might confuse in emotional conditions that how it works. Basically, emotional conditions आपके sympathetic nervous system, sympathetic activity को active करता है, जिसकी वजह से they same example like muscular exercise, it gonna stimulate the kidney, secretion of erythropoietin, blood marrow, but this and the same the sympathetic nervous system and contraction of spleen. So another reason is increased environmental temperature. जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इंक्रीज इन हीट और कोई भी रिएक्शंस के अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली वो रिएक्शन फास्ट होना रखते हैं. तो सेम केस इज हियर. और मील्स के बाद जैसे जो है वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज मील्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा उसके बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और ये बहुत ही स्लाइटली होता है.
नो नाउ अगर सेम ही फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजंस होते हैं? तो रीजंस हो सकते हैं बेसिकली हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर्स ड्यूरिंग स्लीप, प्रेगनेंसी। तो बेसिकली अगर मैं हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात करूँ तो उसमें जो है वेयर द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ द ब्लड हायर होगा और आरबीसी का काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्लीप के टाइम जैसे हम स्लीप के टाइम सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं एक्टिविटीज़ कुछ। द सेम इज द प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। एंड अनदर टॉपिक इज़ पैथोलॉजिकल वेरिएशन। उसी में जो फिजियोलॉजिकल के बाद हम आते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में। तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। So pathological polycythemia is of two types, that is primary polycythemia and secondary polycythemia। तो primary polycythemia जिसमें polycythemia vera भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस कंडीशन में आरबीसी का काउंट बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आरबीसी का काउंट अबव 14 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड एंड डब्ल्यूबीसी का काउंट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी वजह से मैलिग्नेंट ऑफ आरबीसी रेड बोन मैरो मैलिग्नेंट ट्यूमर यू हैव रीड इन द कैंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को बेसिकली हाइपोक्सिया जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग वेयर द filled with fluid in the walls of and the next region is congenital heart diseases। another one is Azara, it's a disease is इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द लंग्स। अनदर रीजन इज क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी ऑक्सीजन हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, जिस वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। एंड केमिकल जैसे फॉस्फोरस एर्सेनिक कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उसमें भी हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, विच लीड टू द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। एंड अनदर वन इज रिपीटेड माइल्ड हेमोरेज के केस में भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। और पैथोलॉजिकल के केस में अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका नेम हो गया बेसिकली एनीमिया। तो एनीमिया नॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट यू हैव ऑलरेडी रीड इन डिटेल इट योर लोअर क्लासेस जूनियर क्लासेस एंड यू विल रीड इट फर्दर इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अगर मैं आरबीसी के साइज़ में अगर कुछ वेरिएशन है तो उसकी बात करूँ तो आरबीसी छोटी भी बन सकती है, वी कैन कॉल इट माइक्रोसाइट्स। छोटी साइज़ की बनेंगी। अगर मैक्रोसाइट्स इफ द साइज ऑफ आरबीसी इज बिगर देन द नॉर्मल साइज। एनिसोसाइटोसिस अगर वो हर का विदाउट यूनिफॉर्म लाइक हर कलर कैसे आरबीसी लाइक दिस दैट एंड रैंडम। तो माइक्रोसाइटोसिस का माइक्रोसाइट्स का रीज़न क्या हो सकता है? तो माइक्रोसाइट्स बेसिकली ये हो सकता है अगर उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी है तब बन सकती है प्रेजेंट इन। और प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग, अगर हम प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग करेंगे तो जल्दी यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल लाइक अगर हम कोई काम जल्दी करते हैं उस वजह से वो काम इम्प्रॉपर होना, हम थोड़े में काम, तो दैट द प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग। एंड अनदर रीजन ऑफ द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में भी माइक्रोसाइट्स बन सकती हैं। मैक्रोसाइट दैट इज आरबीसी जो है उसका साइज बड़ा कब हो सकता है? इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मस्कुलर एक्सरसाइज के केस के बाद भी हो सकता है। अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो ये रीज़न भी इसका हो सकता है। अनदर इज आइनोसाइटोसिस, इसमें पर्नीशियस एनीमिया के केस में हो सकता है ये। आरबीसी इसकी शेप में भी कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डिफरेंस लाइक दैट इज क्रीनेशन। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो आरबीसी से सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा एंड आरबीसी विल श्रिंक, दिस इज नोन एज क्रीनेशन। एंड व्हेन वी प्लेस आरबीसीज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन the fluid will go in the RBCs and it will become globular form. This is known as ferrocytosis. And the next thing is elliptocytosis. Elliptocytosis में RBCs elliptical shape हो जाती है because the types of anemia. Anemia के केस में ये चीज़ देखी जाती है। सिकल सेल RBCs you are very familiar of इसमें RBCs crescent shape सिकल सेल RBCs हो जाती हैं। पोइकुलोसाइटोसिस में अनयूजुअल शेप हो जाती है RBC की सेल बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन उसकी वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उस वजह से RBC की रैंडम शेप हो जाती है, इसमें बी फ्लास्क, हैमर और एनी अदर यूजुअल शेप। So guys, we have done with this chapter, so I'll be back with another chapter of this unit, blood and body fluids. So stay connected with me, and if you love my content then don't forget to like and subscribe, and your comments regarding this matters me most. So bye bye, see you in the next video. Lots of love, stay studying, keep studying.